Everyone, very warm welcome to all. I'm your host Soumya from Team Pankudi. I welcome you all to our day 4 of Advanced Resonant Master Class with our trainer Harshit. हेलो मेरा नाम सोम्या है मैं टीम पंखुड़ी से हूँ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे डे 4 में एडवांस रेजोनेंट मास्टर क्लास में हमारे ट्रेनर हर्षित के साथ. So today's session we learn about the amazing galaxy art in a tray or MDF base. Learn the tropical island creation for ocean art. आज की सेशन में हम गैलेक्सी आर्ट बनाना सीखेंगे ट्रे में या एमडीएफ में और आज हम ओशन आर्ट बनाना भी सीखेंगे कि ओशन क्रिएशन कैसे होता है. So about sessions, this session will be bilingual both English और हिंदी. इस सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा. And whatever queries you have, please ask on chat box. आपकी जो भी queries होती है, जो भी questions होते हैं, आप chat box में पूछ सकते हैं. And if any query is pending, Soumya, your voice is not clear. Can you just put me in spotlight? आपकी कोई क्वेरी पेंडिंग होती है सो आप व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस ग्रुप पे पूछ सकते हो. एंड एंजॉय द सेशन लेडीज एंड योर रिकॉर्डिंग विल बी अपडेटेड बाय आफ्टर 9 PM. आपकी रिकॉर्डिंग 9 बजे के बाद अपडेट हो जाएगी. सो एंजॉय द सेशन लेडीज एंड ट्रेनर कैन यू प्लीज पुट योर कैमरा ऑन लैंडस्केप मोड. It's in the landscape mode only. Okay. Yeah. Because guys, is my voice is clear, or is my camera like every day? Is my camera visible like every day because it's in landscape mode only? Okay, fine. yeah, It's fine, Soumya. Yeah. Okay, fine. Okay, so let's quickly demold the things that we made yesterday. जो मैंने कल बनाया था, हमने बनाया था, उसे हम demold करेंगे फटाफट, ठीक है? So this was Petri effect. Okay. So this is our Petri effect. ये हमारा Petri effect है. Okay. Number 2 was this flower. So this flower came out to be very beautiful. बहुत ही सुंदर आया हमारा ये flower. Okay. So you can see the shading. This is the back side. ये back side है. ठीक है, तो आपको जो भी साइड अच्छा लगे आप उसे फ्रंट ले सकते हैं. इट्स योर चॉइस, वॉट एवर साइज यू वांट यू कैन मेक इट फ्रंट. आई लाइक दिस इज फाइन एज फ्रंट. ये फ्रंट के लिए ये फाइन है, ठीक है. सो यू कैन टेक एनी साइड एज फ्रंट. आप अपने हिसाब से कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है. सो दिस वाज आवर फ्लावर एंड दिस वाज आवर पेट्री इफेक्ट. ये हमारा पेट्री इफेक्ट था. ओके, एंड दिस वाज आवर फ्लावर. So today we will be making galaxy art. हम galaxy art बनाएंगे आज. Okay, and for that today's part of module is also about the island creation. But जो island creation है हम कल ही साथ में सीखेंगे. जब हम ocean art बनाएंगे एक साथ में ही island भी create करेंगे, ठीक है. हम आज नहीं island create करेंगे, हम कल ओशन आर्ट के साथ में एक साथ क्रिएट करेंगे. आज हम गैलेक्सी आर्ट बनाएंगे. ओके, सो दिस इज द एमडीएफ बोर्ड दैट वी पेंटेड ऑन सेकंड डे. ये जो एमडीएफ बोर्ड हमने सेकंड डे में पेंट किया था ये वो वाला है, ठीक है.
Today we will be using 2:1 ratio resin. 2:1 ratio resin use करेंगे आज हम. So whenever you are working on a edgeless base, put some cups and put your artwork on top of cups. जब भी आप एजलेस सरफेस में काम कर रहे हो तब आपको अपने आर्टवर्क को कप्स के ऊपर रखना है, नहीं तो आप यदि नीचे रखोगे तो जो भी ओवरफ्लो होगा वो पूरा नीचे आपके बोर्ड में चिपक जाएगा. सो इफ यू वर्क डायरेक्टली ऑन द बेस, whatever overflow will be there, it will just stick to the base. Okay, so we don't want that. Let's put some cups and then put your base on top of it. अपना base को cups के ऊपर आप रख दो. ठीक है. Now tell me the quantity of resin that will be required for this base. आप लोग मुझे quantity निकाल के बताओ ये base के लिए कितना quantity लगेगा. Diameter is 6 inches. 6 inches diameter है इसका. And we are using 2:1 ratio resin. हम 2:1 ratio का resin use कर रहे हैं. So everyone take out the quantity and let me know how much quantity of resin will be used and how much quantity of hardener will be used. कितना resin और कितना hardener लगेगा आप लोग मुझे निकाल के बताओ. Six inches diameter. So it is coming to 16 grams resin and 8 grams hardener. ठीक है. सब जो ज्यादातर लोगों का क्वांटिटी आया है वो है 16 grams resin and 8 grams hardener, that is 24 grams. Okay, so we are going with that quantity. हम वही quantity से आगे बढ़ रहे हैं. So I'm using an art affair resin today. An art affair का resin use कर रही हूँ मैं. Bottle is big. I don't know you will be able to see it not. Okay, so this is an art affair 2:1 ratio resin. We are using this ratio. And as I told, whenever you are working with resin, always in the bottles, all the properties of resin is written. So read that before you start using your resin. आप जब भी कोई भी रेजिन यूज करते हो उसमें आपको ये सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं, उसे एक बार पहले यूज करने से पहले जरूर पढ़िए. ठीक है. So we are using an art affair resin 2:1, 16 grams resin, 8 grams of hardener, total 24 grams. Okay. And I always repeat, as a beginner, as you start up, just purchase the resin brands that your trainer suggests you. जो आपके trainers आपको suggest करते हैं शुरुआत में वही resin use करिए, क्योंकि यदि आपको desired results नहीं मिलेंगे, problems आएंगी और जैसा हम आपको सिखाते हैं वैसा नहीं मिलेगा तो आप demotivate हो जाओगे. So because taking a good quality resin is very important. अच्छी quality का resin लेना बहुत important है. ठीक है. So I'm taking 1 cup.
ओके, सो मैंने रेजन ले लिया है, वी विल मिक्स इट. So till here, is there any doubt? अभी तक किसी के कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क टिल आई मिक्स माय रेजन. जब तक मैं रेजन मिक्स करूँ, किसी के कोई डाउट्स और क्वेरीज है, यू कैन आस्क हियर. किसी ने कुछ बनाया है अभी तक और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन ऑल्सो यू कैन आस्क. मैम आपने रेजन और हार्डनर दोनों ही दिया है. Yes, Diksha ji, we will take raisin and hardener in the desired proportion because without raisin hardener कोई काम करनी है और without hardener raisin कोई काम करनी है. Ma'am, difference in calculation come due to high gloss or other reason. Please don't. ये चीज मैंने पहले भी बोली है कि अब जब कैलकुलेशन ऐप यूज करो उसमें जो हाई ग्लॉस और अल्ट्रा ग्लॉस लिखा है उसे आप इग्नोर करो. वो उनका कंपनी नेम है, जिस ब्रांड का वो रेजन कैलकुलेटर है उनका कंपनी नेम है. जस्ट फोकस ऑन 2:1 and 3:1 रेशियो रेजन. थिकनेस ऑफ एमडीएफ बोर्ड थिकनेस इज सेम 4 mm. मैम ये एमडीएफ शीट पर हर बार एक्रेलिक कलर यूज करना होगा. यस. हाउ टू कैलकुलेट प्लीज टिल आई जस्ट फॉरगॉट. प्लीज यूज रेजन कैलकुलेटर. आप रेजन कैलकुलेटर में जाओ, अपना उसमें जो जो पॉइंट्स पूछता है वो पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करो. उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं. आप रेजन कैलकुलेटर जाके उसे यूज करो. तब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप पूछो मुझसे. डायरेक्ट प्राइमर के बाद रेजन नहीं यूज कर सकते. आई हैव टोल्ड द रीजंस व्हाई वी यूज एक्रेलिक कलर्स इन द सेकेंड क्लास में मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि हम एक्रेलिक कलर्स क्यों यूज करते हैं. सो यू कैन चेक दैट रिकॉर्डिंग. डे 2 की रिकॉर्डिंग्स को आप दोबारा चेक करिए. आई एम अनेबल टू क्रिएट सेल्स इन आर्ट. हाउ टू क्रिएट. क्रिएटिंग सेल्स वी विल लर्न टुमारो इन ओशन आर्ट. जब हम ओशन आर्ट बनाएंगे उसमें जब वेव्स में सेल्स क्रिएट करना है तो वो हम सीखेंगे. सो यू विल लर्न दैट टुमारो. Ma'am, what is the meaning? You said raisin is harsh in the group chat. So Rakhi ji, what brand of raisin you are using? आपका शायद फोटो फ्रेम का प्रॉब्लम आ रहा था, आपकी फोटोज डी कलर हो जा रही थी. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आप कितने जीएसएम का फोटो पेपर यूज कर रही हैं. एंड दूसरा चीज, आप कौन से ब्रांड का रेजन यूज कर रही हैं. Is it necessary to apply the primer on white acrylic sheet also? Yes. इपोक में तो प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि इपोक तो मैं खुद यूज कर रही हूँ. मैं तो खुद फोटो फ्रेम्स बनाती हूँ इपोक से. इपोक इज वन ऑफ द बेस्ट रेजन्स क्योंकि वो तो बहुत कम हीट जनरेट करता है. एंड व्हाट इज द जीएसएम ऑफ फोटो पेपर दैट यू हैव यूज्ड. कौन से जीएसएम का फोटो पेपर आप यूज कर रही हैं. व्हाट इज दैट ब्लैक कलर इन दैट. इज दैट एक्रेलिक. यस. Can we do Petri effect in other way also? No, Petri effect can be done in one way only. I have seen the dots effect using alcohol in how to make them. ऐसे आप बोलोगे मुझे कि ये डॉट इफेक्ट है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है. आप मुझे रेफरेंस इमेज भेजो तो मैं गाइड कर सकती हूँ. यदि मुझे आता होगा वो तो मैं आपको गाइड कर दूंगी. I don't know, Rakhi ji, if 180 GSM paper you're using and epoch you are using, why you are getting this issue, because ऐसे आना तो नहीं चाहिए, because I do the same way. You can try again. एक बार आप फिर से try कर सकते हो. And I have purchased machine in which sanding drill both are there, but I am unable to drill with that. I think कि sanding machine में drill साथ में कभी भी नहीं आता है. Sanding machine is different, drill machine is different.
And first have to gesso and then acrylic. Yes. I've already seen the picture. That is a sanding machine, not a drill machine. मैंने पिक्चर देखा हुआ है आपका. वो sanding machine है, वो drill machine नहीं है. When we use photos in resin, so did we need to paste it by Fevicol? Then the base is ready in the molds. It by Fevicol when the base is ready. Yeah, you can paste it with photo and then do a top coat. Okay, so our resin is mixed. हमारा resin mix हो गया है. No, this is not Petri effect. This is Vane effect that you learn in Advanced 2.0. This is not a Petri effect. Aparna ji, you can guide Neha ji for that if you have purchased and able to drill with that. Neha ji, please contact Aparna ji for that. She will help you. Okay. Now, I'll show you the colors that we will be using today. तो ध्यान से सारे कलर्स देखना क्योंकि आज हम बहुत सारे कलर्स यूज करेंगे एक प्रोडक्ट में. सो सारे कलर्स ध्यान से देखना आप लोग. सो दिस इज अ बेस ब्लैक ओपेक कलर. ये ब्लैक ओपेक कलर है जो हम बेस के लिए यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज ब्लैक ओपेक कलर दैट वी विल यूज फॉर आवर बेस. देन दिस इज ग्रीन मेटालिक कलर. ये ग्रीन मेटालिक कलर है जो हम यूज करेंगे. देन दिस इज पिंक पर्ल कलर दैट वी विल यूज. ये पर्ल कलर है जो हम यूज करेंगे. दिस इज येलो मेटालिक कलर दैट वी विल बी यूजिंग. ये येलो मेटालिक कलर है जो हम यूज करेंगे. One wait a second. One more color we will use. Okay, so this is blue metallic color that we will use. So you all know pearl colors and metallic colors are same. Just pearl colors are in powder form and metallic colors comes in paste form, and both of them gives you same effect. So you can use pearl color or metallic color, either any of it, whatever is available with you. तो आप सबको पता है कि pearl colors और metallic colors same होते हैं. ठीक है, जस्ट एक पाउडर फॉर्म में होता है, एक पेस्ट फॉर्म में होता है. एंड बट दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम होता है. ठीक है, दोनों का इफेक्ट सेम होता है. तो यू कैन यूज एनी कलर. आप कोई भी कलर को यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हम बेस के लिए ओपेक कलर ले रहे हैं एंड बाकी हम सारे मेटालिक और पर्ल कलर्स ले रहे हैं. रेस्ट वी आर टेकिंग मेटालिक और पर्ल कलर्स. अगेन आई एम शोइंग वंस अगेन. दिस इज ब्लैक ओपेक कलर फॉर बेस. ये ब्लैक ओपेक कलर है बेस के लिए. दिस इज मेटालिक कलर इन ब्लू. ये ब्लू मेटालिक कलर है. ये पिंक पर्ल कलर है. येलो मेटालिक कलर.
एंड ग्रीन मेटालिक कलर, ठीक है। So now I will divide the colors in different cups. और जरूरी नहीं है कि आपको यही कलर्स लेना है, आपके पास कोई भी कलर के मेटालिक कलर्स होंगे या पर्ल कलर्स होंगे तो आप यूज कर सकते हो. यू कैन यूज एनी पर्ल कलर और मेटालिक कलर. इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू टेक सेम कलर शेड्स दैट आई एम टेलिंग यू. Okay. So first for black, and we need very less quantity for pearl colors. बहुत ही कम quantity resin चाहिए pearl colors के लिए. सबसे पहले मैं ब्लू मेटालिक कलर ले रही हूँ, ठीक है. As you are working with 2:1 ratio resin, it gets heated very faster. 2:1 जो रहता है वो जल्दी क्योर होना स्टार्ट हो जाता है. उसकी पॉट लाइफ 15 से 25 मिनट्स रहती है. तो जो आपकी कलर आपको जो वर्किंग है वो फास्ट करनी पड़ती है, ठीक है. यू हैव टू डू वर्किंग फास्ट. Blue, then pink, then yellow, green, and lastly black. मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ. Okay, so we have mixed all the colors. Now we will start our working. हम अपनी working start करेंगे. So सबसे पहले हम black color को pour करना start करेंगे. We'll start pouring our black color. I will not pour colors in the center. I'll just pour black color in the corners. सिर्फ मैं corners, दोनों corners में मैं black color को pour करूंगी. Center में मैं अभी pour नहीं करूंगी, ठीक है. अच्छे से फैला दो, ठीक है. सेंटर का स्पेस में आपको कोई भी कलर नहीं करना है. डोंट पुट एनी कलर इन द सेंटर स्पेस नाउ. Just in both the corners put black opaque color. ठीक है. अभी तक कोई डाउट्स है तो एक बार आप लोग पूछ लो.
फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। Reshma ji, this is Petri effect only. This is not dot effect. Is it necessary to take black for base? Yes. Which one is the blue color? This blue metallic. Green color ये रहा. Okay, चलो. Now, in the center part, I will pour some clear resin. ठीक है, ये जो center part है, उसमें मैं clear resin pour करूंगी. Just pour clear resin in the center. ठीक है, I am pouring clear resin in the center. ठीक है. Now, on top of this clear resin, I will pour pearl colors one by one. जो मैंने clear resin pour किया है, उसके ऊपर मैं अपने pearl colors को एक के बाद एक pour करूंगी. ठीक है. So सबसे पहले blue, pink, yellow, green. ठीक है. मैं थोड़ा सा अपना ब्लू कलर को भी और पोर करूंगी. So what happens when you यदि आपने ब्लैक कलर कर लिया और उसी के ऊपर पर्ल कलर्स करे तो ये पर्ल कलर सेटल डाउन हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे ब्लैक कलर के साथ. दैट्स व्हाई वी पोर क्लियर रेजन इन द सेंटर. इसी कारण हम क्लियर रेजन को सेंटर में पोर करते हैं और उसके ऊपर हम अपने पर्ल कलर्स को पोर करते हैं. दैट्स व्हाई वी पोर जस्ट क्लियर रेजन इन द सेंटर एंड पोर pearl colors on top of it so that they float on the surface. वो surface के ऊपर float करें और opaque color के नीचे settle down. Now they don't settle down beneath the black opaque color. So that's why we have done clear resin in the center. Now we will wait for our resin to become little thicker. थोड़ा सा thick हो जाएगा. हमने pour कर लिया है लेकिन थोड़ा अभी flowy consistency है. This is in flowy consistency right now. We'll wait for 5-10 minutes and then we will provide heat to it to make pattern. हम heat gun से heat provide करके इसमें patterns create. But we have to wait for 5-10 minutes. Our ray comes little thicker and consistent. Will flow outwards. तो वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फ्लो करेगा. यदि अभी बहुत फ्लोई कंसिस्टेंसी में मैं हीट प्रोवाइड करूंगी तो whenever you provide heat to resin it becomes softer. ये वो सॉफ्ट होता है हीट प्रोवाइड करने से. तो अभी जैसे ये लिक्विड स्टेट में मैं हीट प्रोवाइड करूंगी तो ये और ज्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और बहुत ज्यादा कॉर्नर्स में बहेगा. So we don't want that. So we will wait for like 5-10 minutes and then we will pour you will provide heat. उसके बाद हम हीट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. Just finishing touches in the corners. I'll add one more layer of yellow here. Yellow का एक layer और add कर दूंगी मैं. ठीक है. Yes. Any queries till now? Can we use 3:1 ratio after thick consistency? Do not use 3:1 for this art form because
you know the curing time for 3:1 is more. 3:1 का curing time ज्यादा होता है. And the property of pearl colors is that they settle down. वो नीचे settle down होते हैं. तो जब तक आपका resin thick होगा, pearl colors settle down हो जाएंगे. वो surface में float नहीं करेंगे. So if you use 3:1 for this art form, the resin will take a longer period of time to cure. Till then, the pearl colors will settle down. They won't float on the surface. That's why you have to use 2:1 ratio resin for this artwork. इस artwork के लिए आपको 2:1 ही use करना पड़ेगा. इसमें कलर मिक्स हो जाते हैं. इसमें कलर्स मिक्स हो जाते हैं. Like I'm not clear about the question. मैम कॉर्नर में ब्लैक रेजिन यूज किया है. Yes. मैम जो आपने सब कलर पोर किया है 1 by 1, क्या हम उनको थिक कंसिस्टेंसी में पोर कर सकते हैं सो दैट वो फ्लो ही ना रहे. इफ यू आर यूजिंग 2:1, डोंट वेट मच. ज्यादा देर वेट मत करिए, तुरंत पोर कर दीजिए कलर्स को. क्योंकि वर्किंग टाइम इज वेरी लेस. you after you pour it, wait for 5-10 minutes and then provide heat. Won't it bleed outside the edges? Definitely it will bleed outside the edges. That's why we have used latex at the back side. और मैंने सेकंड डे में आपको लैटेक्स यूज करके बताया था कि जो भी ड्रिप्स आती है वो बाद में आप कैसे हटा सकते हो. डेफिनेटली इट्स एजलेस सरफेस, कलर्स विल फ्लो आउटसाइड. मैम अगर कोई और कलर यूज करें तो दैट्स योर चॉइस, यू कैन यूज एनी कलर. So when you're making resin, you have to keep in mind the timing. और ये सब चीजें आपको बनाते बनाते खुद समझ में आएंगी. देखने से चीजें समझ में नहीं आती है. जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंसिस्टेंसी में कब आपको पोर करना है, कब आपको वेट करना है, कितना वेट करना है. वो आप जब बनाना एक बार स्टार्ट करोगे, वो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी. एंड don't worry if in the first go you do not get the perfect result. कोई बात नहीं यदि आपको फर्स्ट टाइम में परफेक्ट रिजल्ट ना मिले तो. एक तो अभी एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है. आपको हो सकता है क्योरिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे खुद को अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योरिंग के टाइम पे. सो बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. अभी बहुत ज्यादा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, तो क्योरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है थोड़ी रीजन में अभी. सो जस्ट डू प्रैक्टिस. यदि एक बार में आइटम नहीं बन रहा है, दोबारा बनाओ. समझो कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फर्स्ट टाइम में क्या आपने गलत किया होगा, नेक्स्ट टाइम अलग बनाओ. सो यू हैव टू गिव टाइम टू दिस आर्टवर्क. इस आर्टवर्क को आपको टाइम देना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है. I used pearl color in mold. All pearl pigments sat down. I didn't get effect. Yes, pearl colors settle down. Pearl colors जो है वो नीचे बैठ जाते. I told you now also. When we are making clock, no, we are not making clock. We are just just a base and we are just creating a base. मैम notes बना सकते. Yes, you can make notes. That's your choice. Like pen paper रखो, जो मैं बताते जा रही हूँ वो साथ साथ में लिखते जाओ. 5-10 मिनट के बाद अगर वो बचा हुआ रेजिन है वो वी ड्राई हो जाएगा तो हाउ वर्क दोस रेजिन. 5-10 मिनट्स के बाद अगर वो बचा हुआ रेजिन वो ड्राई हो जाएगा. कौन सा रेजिन आप बोल रहे हो? ये रेजिन. लाइक वी डोंट नीड दिस एनी मोर. हमें और ज्यादा नहीं चाहिए ये. I already had this piece, that's why I'm just working on it. We are not making any clock or anything in this. So now let's plug in our heat gun and provide heat.
Clock is not part of this module. That is part of special 3D clock effect. That's a alag course. Now I'm taking heat gun. So as I told, don't keep heat gun very close to the artwork. Heat gun को बहुत close नहीं रखना है आपको artwork के, नहीं तो resin जल जाएगा. Do not provide heat very much on the artwork, else your resin will get burned. Okay, so let's. You have to just push the colors little bit. थोड़े से बस colors को push करना है. ठीक है, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ. एंड एक गो में बहुत ज्यादा बार हीट प्रोवाइड नहीं करना है, नहीं तो रेजिन बहुत लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और इधर उधर कलर्स मिक्स हो जाएंगे. सो इन वन गो डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ हीट, else resin will become very liquidy and it will just start flowing from everywhere and colors will mix to each other. So if you want to provide heat, like if you have provided in one go, wait for 5-10 minutes, then again provide heat. यदि आपको लगता है कि एक बार में satisfactory result नहीं मिला, एक और बार heat देना है, तो एक बार दो, फिर वेट करो 5-10 minutes का, फिर उसके बाद फिर दो हीट. नहीं तो वो बहुत लिक्विड स्टेट में हो जाता है, नहीं फिर वो बहुत बहेगा. ठीक है, so I'll wait for 5 minutes and then again I will just provide heat here. Okay, so this looks like जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं वैसा कुछ इफेक्ट इससे बन रहा है. नो, यू कैन नॉट यूज ड्रायर. हीट गन बबल्स के लिए यूज करना है. yes, for bubbles also, for mixing colors also. शैली जी अभी तो बताया कि हीट कैसे यूज करना है, जस्ट शोड यू. Okay, now again we'll go one more go. ठीक है, जहां जहां आपको लगता है कि आपको कलर को फैलाना है उस तरफ से आप पुश करो. जस्ट पुश द कलर्स लिटिल बिट. Okay, now here there is some orange pigment, so I'll just put some blue to hide it. Now we can use blue or pink a little bit more. थोड़ा सा पिंक और यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, why we not use hair dryer? What is the reason? This we have discussed like hundreds of times. बहुत बार हमने डिस्कस कर चुका है, क्योंकि वो हीट नहीं प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ ग्लो प्रोवाइड करता है. एंड वी रिक्वायर हीट. मैम हीट के लिए ड्रायर यूज करना है या कुछ और? हीट गन. होल में रेजन भर जाता है, वो होल बंद हो जाएगा. नो, इट डजंट हैपन विद मी. मेरा होल बंद नहीं होता.
Can make it more ornamental by placing something after drying, then coating. Yeah, we will make stars in this one. Is as it is a galaxy, then we will create stars with acrylic paint. That we will do tomorrow after this is dried. ये dry हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें acrylic color से कल stars भी create करेंगे. And rest, that is total your choice. Like if you want to create anything more, if you have anything more in your mind and you want to add anything more to it, you can definitely do that. That's totally your creativity. यदि आपको इसमें लगता है कि आप कुछ और add कर सकते हो, इसे और beautify कर सकते हो, then you can definitely do that. मैम one way is heat देना है या both side? टोटली जहां आपको कलर को फ्लो करना है. मुझे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है तो मैं एक ही डायरेक्शन में हीट दूंगी. यदि आप दोनों डायरेक्शन में हीट कलर को मिक्स करना चाहते हो तब दोनों डायरेक्शन में दोगे. So you can use Galaxy Art in making name plates. आप name plates बना सकते हो Galaxy Art से. Trays बना सकते हो. Tray के साथ MDF के coasters बना के similar set create कर सकते हो. Up clock बना सकते हो. You can make variety of things with Galaxy Art. बहुत सारी variety of things आप बना सकते हो Galaxy Art से. एंड ऑलवेज यूज हीट गन इन द दो स्लो मोड. उसमें दो मोड होते हैं, एक होता है स्लो मोड, एक होता है फास्ट मोड. यू गेट हीट गन एंड इन देयर आर टू मोड्स, वन इज स्लो मोड एंड वन इज फास्ट मोड. ऑलवेज यूज इन स्लो मोड. हमेशा हीट गन को स्लो मोड में ही यूज करना है. मैम गैलेक्सी एट ब्लैक बेस पर ही बनाना होगा या और कोई बेस कलर भी ले सकते हैं? सो मोस्टली गैलेक्सी मतलब लाइक जो गैलेक्सी हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो. गैलेक्सी जो रहती है मोस्टली ब्लैक स्काई रहता है, या आप चाहो तो डार्क ब्लू कलर ले सकते हो एकदम. बट मोस्टली व्हाइट कलर की तो गैलेक्सी होती नहीं है. गैलेक्सी का कलर ब्लैक ही होता है, स्काई ब्लैक ही होता है. जैसे हम नॉर्दर्न नाइट्स भी देखोगे तो वो रात के अंधेरे में ही नजर में आती है. सो स्काई का कलर मोस्टली ब्लैक ही होता है. दैट्स वाई इसका बेस ब्लैक, या आप ज्यादा से ज्यादा एकदम डार्क ब्लू कलर यूज कर सकते हो. Can we use hair dryer? Your answer means yes or no. No, you cannot use. Tara Mandal. Yeah, that is Tara Mandal. तो तारे रात के ही नजर में आते हैं. तो रात है तो आप उसको ब्लैक से ही रिसेंबल करोगे. आप किसी लाइटर शेड से नहीं रिसेंबल कर सकते. या कुछ आप डार्क वॉयलेट कलर ले सकते हो, डार्क ब्लू ले सकते हो. एनी डार्कर शेड यू हैव टू गो, लाइक दैट रिसेंबल स्काई. मैम क्लॉक का सेशन कब होगा? यू कैन आस्क होस्ट फॉर दैट. मुझे ये सब नहीं पता रहता है. आप जो भी होस्ट है या एडमिन से उनसे कांटेक्ट करिए फॉर दैट. कैन नाउ पर्ल कलर सिंक? नो, पर्ल कलर्स विल नॉट सिंक. They will be as it is like it. In molds, can we use 2:1 resin or 3:1 hardener? No, you cannot. मैंने मोल्ड में रेजन पोर किया तो वो स्पेस आ रहा है, उसमें रेजन और पोर करना है. यदि स्पेस है तो आप पोर करिए रेजन उसमें. और अंतरिक्ष, या करेक्ट, अंतरिक्ष भी बोलते. करेक्ट वर्ड है अंतरिक्ष. यस मैम, वी कैन यूज बोथ मेटालिक एंड ओपेक बोथ. यस यू कैन. मैम कल जो 3D आर्ट किया था उसको टॉप कोट करेंगे ना? नो, top coat is not required in that. That is perfectly fine piece and it is very glossy. We don't require to do top coat on that. Can we create some effects in casting? Yes, like you can create Petri effect when casting. You can create 3D flower effect yesterday that you learned.
you can create a Vane effect that you will learn in advanced 2.0 सेशन. वेन इफेक्ट होता है उसमें, तो वो एडवांस 2.0 का पार्ट रहता है, तो आप वेन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो. तो बहुत सारी चीजें जो आप क्रिएट कर सकते हो कास्टिंग में. एंड गैलेक्सी वोंट बी पॉसिबल इन मोल्ड. मोल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फॉर दिस यदि आप मोल्ड में बनाओगे पर्ल कलर्स सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो इफेक्ट आएगा नहीं. Why won't the pearl color sink? I am facing this issue. Please tell me in the detail. Why won't the pearl color sink? Pearl colors always sink. Pearl colors sink होते ही हैं because they are heavier in weight. जो भी चीज heavy weight की होती है वो नीचे sink होती है. It's all science. The whatever material is heavier in weight, it will sink down. Like in the first basic session when we made keychains, I told you we are making one glitter keychain. Glitter is heavier in weight, it will settle down. So today we made something where I have painted the base in the same acrylic color. ये जो एक बेस था इसमें सेम एक्रेलिक कलर मैंने यूज किया था. ठीक है. अब मैं कल आपको एक पीस जो हम ओशन आर्ट बनाएंगे उसमें मैं बेस को एक्रेलिक पेंट से पेंट नहीं करूंगी. तो आप लोगों के जो डाउट्स है ना कि क्यों हमें एक्रेलिक कलर यूज करना पड़ता है, तो वो कल क्लियर हो जाएगा. तो मैं एक पीस कल वैसा बनाती हूँ जिसमें मैं बेस को सिर्फ गैसो करके छोड़ूंगी, मैं उसमें एक्रेलिक पेंट नहीं करूंगी. सो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों एक्रेलिक पेंट से पेंट करना जरूरी है. Okay, so tomorrow we'll paint, I won't be painting the base with acrylic paints for ocean art. I'll just do the gesso on the MDF board and we will make on ocean art on that MDF board, so that you will know the reason why we do the acrylic paints on our surfaces. You'll see the difference between this one and that one. Now I poured opaque color, then one pearl color, it all got mixed up. Yeah, sometimes it get mixed up. No problem in that. Use more quantity of colors. Colors, जो color आपको चाहिए उससे ज्यादा quantity में डालिए आप. If it settle down, it won't be visible in opaque color. How to tackle it? Like if you're making in mold, pearl color will settle down. There is no option for that. And if you are making in a base, you can do the process that we did today. यदि आप मोल्ड में बना रहे हो तो पर्ल कलर 100% सेटल डाउन होगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है. और यदि आप ये बना रहे हो लाइक यू आर मेकिंग ऑन अ बोर्ड, देन यू कैन यूज दिस मेथड. जो आज हमने मेथड यूज किया, ये मेथड आप यूज कर सकते हो. थैंक्स रोशनी जी, थैंक यू सो मच. That's why I told you do not use 3:1 for this one. यदि हम इसके लिए 3:1 यूज करते तो हमारे भी पर्ल कलर्स नीचे सेटल डाउन हो जाते. Do we have to buy stars for tomorrow? No, no, no. We will create stars with acrylic paint. We will use acrylic paint and we will create stars with acrylic paints only. मैम अगर नेम प्लेट बनाना है तो स्टिकर लगाने के बाद टॉप कोट करना चाहिए. Yes, definitely you have to do top coat. Ma'am, material for tomorrow. Tomorrow you will be needing opaque colors and shades of ocean. Ocean के shades के आपको चाहिए opaque color, MDF board, then कोई भी sand आपके पास available होगी तो sand, and then heat gun, then pebbles, shells.
Yes, this looks beautiful. When you use pearl colors, they give a starry look. जैसे आप pearl colors use करते हो तो उसके जो glitters रहते हैं उससे आपको काफी starry look मिलता है, तो काफी अच्छा दिखता है ये. मैम अगर स्टिकर के प्लेस में एक्रेलिक कटआउट यूज कर रहे हैं तो भी टॉप कोट करेंगे? यस. इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनली ट्राई टू डू टॉप कोट्स ऑन एवरी आर्टवर्क. हर आर्टवर्क के ऊपर टॉप कोट करो, ज्यादा फिनिशिंग दिखती है. कल इसके ऊपर टॉप कोट भी करेंगे? नहीं, हम इसके ऊपर कोई टॉप कोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टार्स बनाएंगे इसमें. What is the use of this? You can use in making anything. आप कुछ भी बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हो. This is a one type of art. ये एक पैटर्न है जो मैंने आपको सिखाया है. आप इसे कुछ भी बनाने में यूज कर सकते हो. What are pressed dried flowers? Are they pre-coated? You can check basic recording. We have used pressed flowers in all our artworks. जो भी चीजें pendants बनाए थे, keychains बनाई थी, सब में हमने pressed dried flowers use किए थे. You can check basic recording. We should do top coat with 2:1 ratio resin. No, never do top coat with 2:1. Always do top coat with 3:1 because that is more glossier. 3:1 से ही हमेशा आपको top coat करना है क्योंकि वो ज्यादा glossy होता है. Yes, you can make coaster. हम स्टिकर्स या नंबर अभी यूज करना है या ड्राई होने के बाद? आफ्टर इट ड्राइज यू कैन नॉट यूज एनीथिंग व्हेन इट इज दिस वेट. कोई चीज गीली है तो उसमें तो आप कुछ भी पेस्ट नहीं कर सकोगे. लाइक इट्स समथिंग लाइक लॉजिकल कि कोई चीज अभी गीली है तो आप उसमें कैसे पेस्ट कर सकते हो. जब वो ड्राई हो जाएगा तभी आप यूज करोगे. और स्टिकर्स को कैसे यूज करना है मैंने आपको बेसिक में भी सिखाया था. एमडीएफ का साइज क्या है? 6 इंचेस. कल का मटेरियल मैंने अभी बता दिया है सबको क्या क्या लगेगा. Okay, so I hope all the queries are taken. सारी queries आप लोगों की ले ली हुई होंगी. If everything is clear, please type all clear. And if there is any query left, you can ask. Also for this art, we should do top coat with 3:1. Yes. कल के मटेरियल के लिए आपको एमडीएफ बोर्ड चाहिए, ओपेक कलर्स चाहिए, ओशन थीम के सैंड चाहिए, शेल्स चाहिए, पेबल्स चाहिए, ग्रास चाहिए आर्टिफिशियल. आप कल का सेशन अटेंड करो, उसमें सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा. एक्रेलिक कटआउट को ड्राई होने के बाद पेस्ट करेंगे. यस. केक बोर्ड यूज कर सकते हैं? नो, दैट इज जस्ट अ कार्डबोर्ड. यू कैन नॉट यूज कार्डबोर्ड. Okay, so we shall wrap up the session for today. All the queries are taken and I hope everything is clear to everyone. सारी चीजें सबको clear हो गई है. तो आज का सेशन हम wrap up करते हैं और हम कल मिलेंगे हमारे लास्ट एडवांस सेशन के साथ जिसमें हम कल ओशन आर्ट सीखेंगे. Okay, and we will create the remaining part of this one like stars and all in this one. ठीक है, इसमें हम stars और ये बताएंगे. Okay. Yes. Yes, Harshit. So thank you so much for the patience and session. Am I audible? Yes, Soumya. Am I audible? Yes, Soumya, you are audible. Okay. So. Okay. Okay. Thank you so much for the amazing session. Thank you, Soumya. Bye-bye. Thank you Bye, so everyone. much, participants. Bye. Take care. And thank you so much, participants, for joining us. I hope you loved our session. And see you tomorrow at the same time.
Have a great evening, guys, and your recording will be updated by after 9 p.m. आपकी recording 9 बजे के बाद update हो जाएगी. So don't worry. So bye bye everyone. Take care.